First, you need to know the general equation of a quadratic equation, which is ax square plus bx plus c is equals to 0. Second step, you need to multiply a and c, that are the coefficient of x square and the coefficient of x raised to the power 0. That means x square coefficient, which is a, and the constant term, which is considered to be as a c. So if you multiply a and c, you will get a number d. Third step, do prime factorization of d. Whatever the value you are getting as a product of a and c, like it is obviously a number only, then you have to go with the prime factorization of d. Fourth step, select two numbers. अब ये जो दो नंबर्स आप सेलेक्ट करने वाले हो, दे माइट बी कंसीडर एज फॉर एन एग्जांपल अल्फा एंड बीटा, and this is called pair, such that a multiplied by b is equal to the product, which is obviously the d, and alpha plus beta is equal to the value of the middle term, which is the b. So these are the numbers by which we can able to find out the factors of the quadratic equation. So these are the steps. Now we are going with the question, just taking an illustration with an example. Now if I am talking about exercise 4.1, question number first, there is one they are having 5 subparts. The first one is x square minus 3x minus 10 is equals to 0. So here if I am do comparing of ABC, I will get the value of A as B, the value of B is minus 3, the value of C is minus 10. Now what is the first rule? You need to know the general equation. After that, comparison. Second step is find out the value of A multiplied by C, which is A 1 into 10, 1 into minus 10, which is equals to minus 10. Third step, you need to do the prime factorization of D, which is your third step. तो prime factorization कर लेते हैं. 10 का 2, 5, 5, 1. Select two numbers, दो numbers हमने select करने हैं और यहाँ पे दो ही numbers हैं, such that जिनका product किसके equal होगा 10. Obviously आपने दो ही numbers, अब आपके पास यहाँ पे आप safer side पे हो. क्यों? आपको ना ही कोई नया number include करना है, ना ही कोई इसमें से number remove करना है, ना ही नया नंबर की एंट्री करानी है, नहीं ना ही किसी नंबर को हमने रिमूव करना है. जितने भी नंबर्स होंगे इसी में से ही होंगे. अब यहाँ पे फिलहाल तो दो ही नंबर्स हैं. दोनों नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली 10 आता है, लेकिन एक चीज का भी ध्यान रखना है कि दोनों नंबर्स को ऐड करने पे b आना चाहिए. अब अगर मैं b की वैल्यू देख रहा हूं तो यहाँ पे b की वैल्यू है -3. तो इन दोनों को ऐड कराने पे हमारे पास जो फोर्थ स्टेप में नंबर्स आने वाले हैं वो आएंगे हमारे पास -5 एंड +2. यानी कि ये वो दो नंबर्स हैं जिनका यूज किया जाएगा इन मिडल टर्म स्प्लिटिंग. दिस इज आल्सो कॉल्ड द मिडल टर्म स्प्लिटिंग. तो इक्वेशन हम देख लेते हैं, विच इज x स्क्वायर -3x -10 इक्वल्स टू 0. नाउ x स्क्वायर, अब यहां देखो ना देखो आपने नंबर्स पहले ही निकाल दिए. तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं? -5x + 2x -10 इक्वल्स टू 0. क्योंकि आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी है तो मिडल टर्म में हमारे पास वेरिएबल की कौन सी पावर होती है? 1, विच इज x रेज़ टू द पावर 1, वो आपके पास होना चाहिए. नाउ इफ आई एम स्टार्टिंग विद टेकिंग द कॉमन comes out to be x, it becomes your x -5. Now if I start with taking common in the second two terms, it comes out to be 2, then it becomes x -5 equals to 0. So we are having first factor as x -5 and another factor as x + 2, which is equals to 0. Now if I am going with the logic that we are having a product of two terms, two digits, so if I am getting the product of two terms to be equals to 0, it must it is very obvious that it must be having a situation in which one term should be 0. It might be x -5 equals to 0, so that we can able to find out the value of x, or it should be equals to x + 2 equals to 0, so that we can able to find out the value of x as -2. So we are having two values, 5 and -2. Square plus x -6 equals to 0. This is the second part. Again, अब मैं थोड़ा से अब हम जल्दी करेंगे इसको. Now what is the value of a 2? What is the value of b, which is +1?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -6। हम क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई कराएंगे, a और c को मल्टीप्लाई कराने पे वैल्यू आ रही है -12। 12 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं विच कम्स आउट टू बी 3 4 2 2 2 1। अब बात आ गई कि प्राइम फैक्टराइजेशन तक तो बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे, उसके बाद है कि आपको दो नंबर्स उसमें से सेलेक्ट करने हैं, यानी कि पेयर्स बनाने हैं आपने। अब अगर हम पेयर बनाते हैं, और पेयर भी आपने इस तरह से बनाने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो d आएगा। अब देखो ये सारे नंबर्स है, मल्टीप्लाई करने पे तो हमेशा 12 ही आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि एडिशन पे। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 1 आना चाहिए। तो साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 होता है, और एक नंबर मेरा हो जाएगा 3, यानी कि हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो हो गए 3 एंड 4। अब ये 3 एंड 4 में हमें कौन सा चाहिए, पॉजिटिव 1। तो ऑब्वियसली 3 पे क्या होगा माइनस, और 4 पे क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि ये जो टर्म्स है ये हमारे पास आगे यूजफुल रहेंगे हमारे लिए। तो इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आएगा कि सर आपने यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया है तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यू माइट include it in the solution also, you might like it is totally depending upon you, you can do it in the rough also and you can do it this in your brain only। बट जब भी हम दिमाग में कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी प्लस माइनस की गलती ना हो, सो इट्स बेटर इफ यू गो विद अ प्रैक्टिकल। सो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, सो 2x स्क्वायर प्लस x minus 6, not plus 6। now we are having -3 plus 4, so -3x plus 4x। if I am going with the concept we need to take the common, 2x और 3x में क्या कॉमन आएगा x, तो टर्म क्या बचेगी 2x minus 3। again if I am going with the concept of taking common, 4x और minus 6x में क्या कॉमन आएगा बच्चे 2, तो टर्म क्या बचेगी 2x minus 3 equals to 0। now we are having 2x minus 3, 2x minus 3 and we are having x plus 2 as those two factors which is equals to 0। now if I am going with the same logic, that means the product of two numbers are 0, so that means it is very much possible that one term should be equals to 0। so if 2x minus 3 is equals to 0, the value of x comes out to be 3/2, and if the value of x plus 2 is equals to 0, here the value of x comes out to be -2। so by this way you can go with the prime factorization, which is also called as middle term splitting, factorization and middle term splitting। you keep on, we are having 2x square minus x plus 1/8 equals to 0। here we are having a term which is written in the form of the fraction। it totally depend upon you whether you can go with the direct formatting, with direct taking these values as to be ABC, or it is very much easier for us like if I go with taking the LCM first and making this general equation to be in the simplified form। if I take the LCM of 1 1 and 8, it comes out to be 8 only, then your equation becomes 16x square minus 8x plus 1 equals to 0। if I go with the concept of transposing this 8 from left to right, it should be multiplied with 0 and this equation becomes 16x square minus 8x plus 1 equals to 0। so हमें ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू कितनी है बेटा 16, b की वैल्यू कितनी है -8, c की वैल्यू कितनी है +1। अब अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं इसका तो d की वैल्यू कितनी आती है 16 का एलसीएम करना है, क्या कह लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 8 2 4 2 2 2 and 1। now you need to select the two numbers such that their product is equals to d। तो सर इनमें से जितने भी आप नंबर्स लोगे सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो 16 ही आएगा, बट वो जो दो नंबर्स हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या नंबर लेके आना है विच इज 8। तो यहाँ साफ आपको नजर आ रहा है दैट 2 into 2 which is 4, 2 into 2 which is 4, क्योंकि 4 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी 8। लेकिन 8 क्या है हमारे पास माइनस है, तो 4 and 4 नंबर्स नहीं है, नंबर क्या है -4 and -4, ताकि -4 और -4 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा -8। सो योर इक्वेशन बिकम्स 16x square minus 4x plus 1 equals to 0। so if I take the common from these two terms, it is 4x, which is 4x minus 1। if I take the common from this, it should be 1, but the other number is different with the in terms of the sign। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं 1 लूंगा तो -4x plus 1 आएगा, लेकिन यहाँ लिखा है 4x minus 1। तो अगर हमें 4x minus 1 लेके आना है तो क्या नंबर बाहर कॉमन लेना होगा, which is -1 equals to 0। now your first number is
4x minus 1 and the another number is 4x minus 1 equals to 0. Now if I am again going with the comparison of these two terms with the 0, it comes out to be 4x minus 1 equals to 0, x is equals to 1 by 4. Again we are having 4x minus 1 equals to 0, x comes out to be 1 by 4. Third, find the two numbers whose sum is 27 and the product is 182. Okay, so let the first number, mic off कर दो बेटा. Let the first number is equals to x and the second number is equals to y. Then क्या गिवन हमें कि दो नंबर्स का जो सम है that is equal to how much, which is 27, and the product of these two number is equals to how much, which is 182. अब यहां से किसी भी एक टर्म की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज कॉल्ड एज फाइंडिंग आउट द वैल्यूज और फिल्ट्रेशन ऑफ वेरिएबल. अब हमें वेरिएबल्स को अगर फिल्टर करना है तो हमें या x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या y की. सो इफ आई एम फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x, इट कम्स आउट टू बी 27 minus y. So this is, let this be the equation number first and this be the equation number second. So from equation first and equation second, I need to put the value of x which is from first equation in second equation. So it is 27 minus y multiply by y is equals to 182. So हमें ये चीज समझ में आई. Okay, 27 into y which is 27y, y into y which is y square is equals to 182. अब वही लॉजिक पे आ जाओ कि पावर क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग. पावर अगर हमें डिक्रीजिंग करनी है तो हम एक काम करते हैं कि y की पावर 2, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ये सबसे पहली टर्म होनी चाहिए, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना देते हैं, तो राइट साइड में ले जाते हैं. अब जब इसको राइट साइड में लेके गए इसको भी ले जाएंगे विच इज माइनस 27y, और वो तो ऑलरेडी राइट साइड में है तो वो अपने साइन के साथ ही रहेगा विच इज पॉजिटिव. तो योर इक्वेशन बिकम्स y स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182. कंपेयर करते हैं बेटे कोफिशिएंट्स a b c. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 27, c की वैल्यू कितनी हो गई 182. अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 182 ओनली. तो 182 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, विच कम्स आउट टू बी हाउ मच, 9 into 2 18, it is 91. अब 91 को हमें चेक करना है. I think it comes out on the table of 13 and 7. 7 13 13, क्योंकि 13 itself is a prime number. तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए वो आएंगे 2, 7 and 13. अब प्रोडक्ट पे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि नंबर्स तो वही रहेंगे, बट आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है. अब हमें इतना पता है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके कितना नंबर आना चाहिए हमारे पास, माइनस 27. तो 2 into 7 कितना होता है बेटा 14, और 14 और 13 को ऐड करने पे कितना आता है हमारे पास 27. तो 14 एंड 13 जो है वो दोनों नंबर्स हैं जो हमारे पिक किए जाएंगे, और 27 पे माइनस का साइन है यानी कि दोनों नंबर्स माइनस के ही होंगे, तभी माइनस माइनस क्या होता है प्लस. सो योर इक्वेशन बिकम 0 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y plus 182. If I take the common from these two terms, it should be y minus 14, और यही y minus 14 आगे भी होना चाहिए हमारे पास y minus 14. अब यहाँ देखो y के पास क्या है बेटे 13, तो 13 लिखेंगे, लेकिन अंदर साइन चेंज हो रहा है तो बाहर क्या आएगा हमारे पास माइनस, इक्वल टू 0. सो योर फर्स्ट नंबर बिकम y minus 14 and the second number becomes your 5 minus 13 equals to 0. अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों टर्म्स को तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 14 और एक y की वैल्यू आएगी 13. अब इन दोनों में से कौन सी एक्सेप्ट की जाएगी वो भी ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव भी होता है तो भी दोनों नंबर्स हमारे पास क्या है पॉजिटिव ही हैं, तो दोनों नंबर्स पिक किए जाएंगे. तो आपके पास दो आंसर्स बनेंगे. आंसर नंबर 1, व्हेन y इज इक्वल्स टू 14, अगर y की वैल्यू 14 होगी तो x कितना होगा 13, और अगर y की वैल्यू 13 होगी तो x कितना होगा हमारे पास 14, क्योंकि दोनों नंबर्स पिक किए जाएंगे इस बार. फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. अब मैंने कल आपको बता दिया था कंसेक्यूटिव क्या होते हैं. कंसेक्यूटिव वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर कोई एक पहला नंबर लिया जाता है तो कंसेक्यूटिव यानी कि उससे अगला नंबर जिसमें हम 1 को ऐड करा देते हैं.
तो किसको कंसीडर करेंगे, उस वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा जो वैल्यू हमारी स्मॉलर है। तो स्मॉलर को एक बार कंसीडर करते हैं। सो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, देन द सेकंड नंबर बिकम्स योर x plus 1. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर हैविंग फ्यू थिंग्स। द सम ऑफ वूज स्क्वायर्स, अब देखो यहां पे चीजों को समझना है। द सम ऑफ वूज स्क्वायर्स and the square of whose sums, दोनों में डिफरेंस है बेटा। बल्कि ये जितने भी बच्चे अभी क्लास में हैं, चाहे वो पीडीएफ कर रहे हैं या एनसीईआरटी, वो भी इस चीज को समझ लें एक बार, क्योंकि हो सकता है फॉर्म चेंज हो जाए, आप इसमें दिक्कत खा जाते हो कई बार। यहां लिखा है द सम ऑफ वूज स्क्वायर्स, यानी कि किस चीज का सम, उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम, दैट मीन्स a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। The sum of whose squares, English की लाइन लिखी हुई है, this is the sentence which is written in English, you have to break it in the form of mathematics. The sum of whose squares, अब देखो ध्यान से नीचे क्या है, the square of whose sums, जिनके सम का स्क्वायर, यानी कि a plus b whole square। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो लिखा है द सम ऑफ whose squares, यानी कि इनके खुद के स्क्वायर्स का सम, यानी कि दोनों को ऐड करके स्क्वायर नहीं करना बल्कि स्क्वायर करके ऐड करना है, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 365। नाउ दिस बिकम्स योर एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स योर a plus b होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 365। नाउ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, विच इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस टर्म को भी इधर ले आओ, माइनस 365 इक्वल्स टू 0। इट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x। नाउ 1 में से 365 जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 364 इक्वल टू 0। अब अगर किसी स्टूडेंट को ज्यादा पंगे नहीं लेने कैलकुलेशन के साथ तो वो इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता है, बट अगर किसी स्टूडेंट को पता चल रहा है कि नहीं सर इस पर कॉमन लेके इसको और इजी बनाया जा सकता है और हमारी कैलकुलेशन के लिए हम सेफर साइड पे आ जाएंगे, तो ही और शी कैन टेक कॉमन ऑल्सो, क्योंकि तीनों के पास या जितनी भी टर्म्स है उनके पास सेम फैक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे तीनों टर्म्स है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट। तीनों टर्म्स के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है विच इज 2, जो कि कॉमन आ रहा है। तो अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो बेटा क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स 2 में जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा और ये फैक्टर क्या हो जाएगा, खत्म। वंशिक है, ज्यादा जल्दी नहीं आ गया। सो द वैल्यू ऑफ a इज 1, b इज इक्वल्स टू 1, द वैल्यू ऑफ c इज माइनस 182। अब बेटा इनको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, 182। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 की वैल्यू, इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं 182 को, तो हमारे पास कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी, 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 91, देन अगेन 7, देन अगेन हमारे पास 13, देन 13, देन अगेन 1। अब b की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1, तो इतना तो हमें पता चल गया कि 2 और 7 इंटू 14, 14 और 3, यानी कि जो दो नंबर्स हैं हमारे पास वो दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, 14 एंड 13। लेकिन इस बार हमें नंबर चाहिए पॉजिटिव में 1, तो पॉजिटिव 1 में तो तभी आएगा जब 14 में से 13 चले जाएगा, और साइन किसका होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि बड़ी वैल्यू 14 की होनी चाहिए। समझ आ रहा है, ओके। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं बेटे तो ये हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ इफ आई टेक x कॉमन, इट बिकम्स योर x प्लस 14, देन अगेन अनदर फैक्टर शुड बी योर x प्लस 14, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x के आगे क्या लिखा है 13, तो 13 होना चाहिए, और दोनों में साइन का डिफरेंस है, माइनस 13 इक्वल्स टू 0। Now x plus 14 is one of your factor. The other factor should be x minus 13 equals to 0. अगर हम इसको 0 के साथ कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 14, और अगर यहां 0 से कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 13। अब क्वेश्चन में लिखा है यू हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो माइनस 14 तो कैंसिल, 13 को हम एक्सेप्ट करते हैं, और अगर हम 13 को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन कौन से नंबर होंगे, इफ वन नंबर इज 13 तो 13 प्लस 1 नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास
14. Question number 5th. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. अब देखो यहां ना राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है आपको. अब राइट एंगल ट्राइंगल में टर्म्स होती हैं जो आपको ध्यान से समझनी है. दिस इज कॉल्ड योर एल्टीट्यूड. दिस साइड इज कॉल्ड एज बेस. This side is called as your hypotenuse या hypotenuse. The altitude of the right angle triangle is 7 less than its base, यानी कि बेस से भी कम है हमारे पास altitude. तो अगर कंपैरिजन किया जा रहा है बेस के साथ तो कंसीडर करते हैं let the base equals to x centimeter, then the altitude should be x minus 7 centimeter. 7 minus x मत लिख देना प्लीज. उसने लिखा है 7 कम है. Like if I am having 20 rupees and you are having 7 rupees less than as compared what I am having right now, it should be your 13 which is 20 minus 7. तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो टर्म दी गई है इंग्लिश फॉर्म में उसको आपने मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करना है. एंड हाइपोटेन्यूज इज 13. आपको गिवन है द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर. अब अगर हमारे पास बेस आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए और हाइपोटेन्यूज आ जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल से पाइथागोरस थ्योरम हो तो सभी को ही पता होगी. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h व्हिच इज 13 स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? x minus 7 whole square. What is the value of b? Which is x square. Now what is the square of 13? 169. What should be x minus 7 whole square, which is a square plus b square minus 2ab plus x square. सारी टर्म्स को एक साइड करते हैं. x स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव में है तो उसको राइट साइड में ही रहने देंगे. सारी टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट करते हैं. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x plus 49 minus 169 equals to 0. Your equation become 2x square minus 14x. अब देखो 169 में से 49 जाएंगे तो टर्म आएगी हमारे पास 120 इक्वल टू 0. दोबारा बता रहे हैं कि अगर आपको यहीं इसको कैलकुलेशन को खत्म करना है तो मतलब आगे फिल्टर नहीं करना, आगे इसको कॉमन नहीं लेना, सिंप्लीफाई नहीं करना, दैट्स अप टू यू, बट फॉर माय चॉइस यू मस्ट डू. सो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं बेटे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस 7, c की वैल्यू कितनी है माइनस 60. 1 इंटू माइनस 60 विच इज माइनस 60 ऑब्वियसली. 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कितनी वैल्यू आएगी 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. अब नंबर्स तो मैंने कहा है कि आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको वही नंबर्स मिलेंगे. मेन तो प्रोडक्ट का नहीं है, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझनी है. हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना और नंबर आना चाहिए 7. तो ध्यान से देखो, अगर हम वैल्यू लेते हैं 3 इंटू 5 विच इज 15 और 2 इंटू 2 4, तो 15 और 4 के रिलेशन से कभी 7 नहीं आएगा, तो रिलेशन हमें चेंज करके देखना होगा. अब ध्यान से देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और 12 में से अगर 5 जाएंगे तो 7 आ सकता है. यानी कि इतना लॉजिक आपको, अब देखो यहाँ पे तो पेयर्स कॉम्बिनेशंस आपने बनाने. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, यानी कि पहला नंबर क्या हो गया 12 और दूसरा नंबर क्या होगा हमारे पास 5. तो 12 और 5 को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो 7 हमारे पास इजीली आएगा. और 7 भी क्या होना चाहिए माइनस का, तो 5 पे क्या आएगा पॉजिटिव और 12 पे क्या आएगा नेगेटिव. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 12. इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0. यहां से दो वैल्यूज आएंगी x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. और कंपेयर करने पे x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू माइनस 5. अब हमने क्योंकि लेंथ को कंसीडर किया था और लेंथ तो कभी भी हमारे पास नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो लेंथ को नेगेटिव को हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट, रिजेक्ट.
कौन सी एक्सेप्ट की जाएगी, विच इज 12, और अगर हम x की वैल्यू को कंसीडर नहीं, दैट मींस वैल्यू फाइंड आउट करिए विच इज 12, तो 12 माइनस 7 एल्टीट्यूड कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, और अगर आप इन दोनों के स्क्वायर्स का सम करके अंडर रूट निकालते हो तो वो भी आपके पास कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 13। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द अदर टू साइड्स, आपने दोनों साइड्स को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स डेली बेसिस पे प्रोड्यूस कर रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब यहाँ पे कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ रहे हैं और कॉस्ट को ज्यादा बताया जा रहा है, मोर देन लिखा है कॉस्ट में, तो छोटी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को किसी वेरिएबल के साथ कंसीडर करते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स is equals to x, then the cost of one article, ये भी ध्यान रखना कि एक ही आर्टिकल की कॉस्ट गिवन है आपको, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 3 more than twice the number of article, that is rupees 3 more than twice the number of article, 3 more than, that means 3 plus twice the number of article which is 2x, and the total cost was found to be 90 rupees। अब आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास कितनी, विच इज ₹90। अब अगर हम डेली लाइफ की एप्लीकेशंस को डील करते हैं कुछ इसी प्रॉब्लम्स के साथ, तो हम कैसे समझ के चलते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने भी होते हैं ना हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर हम उसकी कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग अ 5 पेन, आई नीड टू बॉट 5 पेन, और एक पेन की कॉस्ट जो है दैट इज 5 रुपीज ओनली, तो 5 into 5 which is 25, that means I have to pay ₹25 to the that person who is giving me those pens. Now the number of article which is equals to how much, x multiply by the cost of the article, that is 2x, 3 plus 2x, and the total cost which is given to in the question, that is 90। अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x plus 2x square is equals to 90, 2x square plus 3x minus 90 equal to 0। अब यहां भी कॉमन लिया जा सकता था, लेकिन तीनों के पास सेम फैक्टर ही कॉमन होना चाहिए। 2 और 90 के पास भी सेम कॉमन फैक्टर है विच इज 2, 3 और 90 के पास भी सेम कॉमन फैक्टर है विच इज अगेन 3, बट 2 और 3 के पास सेम कॉमन फैक्टर नहीं है, तो तीनों अगर कॉमन फैक्टर पे नहीं आएंगे तो हम उनको कॉमन नहीं ले सकते। अब चलते हैं अपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, ए बी सी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू -90 है। ये थोड़ा सा हो सकता है चैलेंजिंग हो जाए हमारे लिए, क्योंकि 2 into 90 कितना होता है, 180। अब 180 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 290, 245, 315, 3 5 5 1। सो दीज आर द नंबर्स। नंबर सारे पिक होने चाहिए। मैंने दोबारा बोला है कि कोई भी एक एक्स्ट्रा नंबर नहीं इंट्रोड्यूस करना, ना ही इसमें से कोई नंबर हमें रिमूव करना है। तो प्रोडक्ट वाली जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाती है। अब आ जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें लेके आना है 3। तो स्टार्ट करते हैं। 2 into 2 4, 4 into 3 12, 3 into 5 15। पता ही चल गया। तो ये बहुत आपके लिए जो मेथड है, दिस इज ऑल अबाउट द थिंग कि आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यूज को जो है जब हम लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है 12 में से 15 जाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 13। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि +15 और -12 होना चाहिए, ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आनी चाहिए +3। सो योर वैल्यू बिकम्स 2x² + 15x -12x -90 = 0। If I take the common, it should be x, तो क्या नंबर आएगा 2x + 15। यही सेम वैल्यू फैक्टर हमारे पास रिपीट होना चाहिए, विच इज 2x + 15। अब देखो ध्यान से, यहाँ 2x है और यहाँ 12x है, किससे मल्टीप्लाई होगा 6, और दोनों में साइन चेंज है तो क्या आएगा बाहर -, = 0।
तो योर फर्स्ट फैक्टर बिकम्स 2x प्लस 15 and the other factor becomes x minus 6 equal to 0. On comparison, I get the value of x equals to minus 15 by 2 and x is equals to 6. अब x था क्या हमारे पास? नंबर ऑफ आर्टिकल, और नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है. नंबर जो होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल तो पूरे ही होंगे, तो यानी कि माइनस 15 बाई 2 तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आएगी, विच इज 6. तो अगर x की वैल्यू बेटा 6 है, तो अगर हमें कॉस्ट फाइंड आउट कर रही है तो कॉस्ट फाइंड आउट कैसे होगी, विच इज 3 प्लस 2 इंटू 6, 3 प्लस 12 विच इज ₹15. यानी कि हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 15, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 6, और सबको मल्टीप्लाई करने पे यानी कि 15 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करने में आपके पास 90 आएगा.